Now, today we will discuss on the topic or point venture capital. It is a part of the startup. Before the starting venture capital, uh, we follow the startup and exit business. If you want to start any business, so we need to grow business, we need money. But where from the money? Cash investment will come, stages of business and its funding, startup stage funding from triple F. Triple F means friends, family, and then fools. Fools means some investors, angel investors, or any venture investors, venture capital investors. So early stage funding from angel investors, that is the two type of the investors, angel and venture capitalist. So growth stage funding from venture capitalist. Steps to get funding from venture capitalist. We took money from friends, family to make business model, its website and infrastructure model, etc. Now we require for that money, we have to choose loan and investors. So investors is the angel investor and capital investors. So what is the capital venture capital? Capital invested in a project in which there is a substantial elements of risk, typically a new or expanding business. So venture is an undertaking involved risks or dare to do or share. Then capital amounted invested by the person to carry out the newly established business. So in detail, introduce the venture capital. Venture capital means funds made available for startup firms and small business with exceptional growth potential. So there is a common perception that venture capitalism means of financing high technology projects. However, venture capital is investment of long-term finance made. Venture capital is the financial support to young, rapidly growing companies, individuals that have potential to develop to significant economic contributors by the business main group to create a product or service which has unique idea. So we are thinking about some students are thinking or persons thinking about why are you going to venture capital. You have so many options of the banks. बैंक के बहुत सारे ऑप्शंस अपने सामने हैं, अपने पास है, फिर भी आप वेंचर कैपिटल क्यों एक्सेप्ट करना चाहते हैं, वेंचर कैपिटल के पास क्यों जाते हैं? सो अगर आप बैंक के पास गए, गवर्नमेंट भी फैसिलिटीज अवेलेबल करके देती है, कर रही है बहुत सारे फैसिलिटीज फाइनेंस के, लेकिन वहां पर टाइम कंज्यूम बहुत होता है और जल्दी जल्दी काम नहीं होता है. जो डॉक्यूमेंटेशन जो रिक्वायर्ड है बहुत सारे रहते हैं और वो प्रॉपरली आपको फंड्स अवेलेबल होते नहीं, टाइम पे अवेलेबल होते नहीं और झंझट बहुत है वहाँ पर. अगर बैंक के पास गए आप तो बैंक आपको दो रीजन पूछती है, एक पर्पस ऑफ द बिजनेस, देन मॉर्गेज, क्या कर रहे हैं आप मॉर्गेज, उसको मॉर्गेज के लिए आपके पास कुछ है क्या, आपका एक्सपीरियंस, पास्ट आपने जो टैक्स रिटर्न्स किए हैं वो टैक्स रिटर्न्स, आपका फाइनेंशियल पोजीशन, ये सब देखते हैं. अगर न्यू कमर्स है, न्यू आइडिया लेके कोई आया है तो उनके पास ये सब चीजें नहीं रहती, तो उसके लिए ये बेटर अपॉर्चुनिटी है कौन सी, वेंचर कैपिटल की. इसके पहले आपने जो लास्ट लेक्चर में देखा है कि क्राउड फंडिंग, और क्राउड फंडिंग में अगर कोई सक्सेस नहीं होता है तो ये ऑप्शन उनके पास है वेंचर कैपिटल का. अगर क्राउड फंडिंग में जो सक्सेस रेट रहता है वो कितना रहता है,
ओनली 8 to 10% रहता है या 15%। यहाँ पर वेंचर कैपिटल में भी सक्सेस रेट कम है, लेकिन 20+ है, 20% से ज़्यादा सक्सेस रेट है। तो यहाँ पर सक्सेस मिलता है अच्छी तरह से। अगर आपको इन्वेस्टर मिल गए अच्छे वेंचर कैपिटल के और एंजल इन्वेस्टर, तो आपका बिजनेस ग्रो हो सकता है, स्टार्टअप हो सकता है अच्छी तरह से। So, startup companies with a potential to grow need a certain amount of investment. Wealthy investors like to invest their capital in such business with long-term growth perspective. This capital is known as a venture capital, and investors are called venture capitalists. Then, features and characteristics of venture capitalist. यहाँ पर फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर है हाई रिस्क। A high risk venture capital represents financial investment in a highly risk project with the object of earning a high rate of return. अगर आप ज्यादा से ज्यादा रिस्क लेंगे उतना रिटर्न आपको मिल सकता है। कई बार आपको वो रिस्क उठाना पड़ता है, आप फेलियर भी हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम केसेस में वो स्टडी रहता है, जो इन्वेस्टर रहते हैं, एंजल इन्वेस्टर रहते हैं, उनका वो स्टडी रहता है कि कहाँ पर कैसे इन्वेस्ट करना है। अगर यहाँ पर इतना इन्वेस्ट करेंगे तो आगे की पीपीटी में देखेंगे और उनका स्टार्टअप कैसा कैसा रहता है। तो यहाँ पर अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं आप, तो रेट ऑफ रिटर्न, अगर हाई रेट ऑफ रिटर्न चाहिए तो आपको रिस्क भी ज़्यादा लेना पड़ेगा वहाँ पर। द टर्म वेंचर कैपिटल रिप्रेजेंट्स फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इन हाईली रिस्क प्रोजेक्ट विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग a high rate of return. While the concept of venture capital is very old, the recent liberalization policy of the government appears to have given a fillip to the venture capital movement in India. Then, equity participation. Equity participation means venture capital financing is invariably an actual or potential equity participation wherein an object of venture capitalist should make a capital gain by selling the share once the firm becomes profitable. Then long term investment. अब यहाँ पर जो है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है। अगर आप लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए, ज़्यादा रिटर्न के लिए, ज़्यादा गेन के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना यहाँ पर जरूरी है वेंचर कैपिटल में। अगर वो आप कर सकते हैं तो ही आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और वो जो करने वाले जो वेंचर कैपिटलिस्ट रहते हैं उनके पास ज़्यादा पैसा, ज़्यादा कैपिटल फंड्स, ज़्यादा फंड्स अवेलेबल रहते हैं, इसलिए ढूंढते रहते हैं कि किसके पास अच्छा आइडिया है, कौन अच्छी तरह से बिजनेस कर सकता है, वो उनको ढूंढते रहते हैं और ऐसे लोगों को वो फंड्स अवेलेबल करके देते हैं। देन पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट in addition to providing capital. Participation in management means venture capital funds take an active interest in the management of the assisted firms. Thus, the approach of is different from that traditional lender of bank. जो है बैंकर के, उसके अलावा ये डिफरेंस है। ये पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट हो सकते हैं कि आपका बिजनेस जो चल रहा है वो कैसे चल रहा है, डे टू डे वर्किंग कैसा है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है अपनी, वो देख के वो इन्वेस्ट करते रहते हैं। प्रोवाइडिंग एट अ लार्ज स्टेज, अर्लियर स्टेज फाइनेंस टू स्मॉलर एंड लेस मैच्योर कंपनीज, फाइनेंस न्यू एंड रैपिडली ग्रोइंग कंपनीज। ये एडिशनल फीचर्स है उनके, लैक ऑफ क्वालिटी एंड देन लॉन्ग टाइम हॉरिजॉन। Then need to venture capital. Between that is bridge the gap between capital and knowledge. कैपिटल एंड नॉलेज का जो गैप है, इसके बीच में वो काम करने वाले थे वेंचर कैपिटल। जो नॉलेज, जो आइडिया है किसी के पास, और कैपिटल, उनको साधने का काम करते हैं। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेस, जो अवेलेबल रिसोर्सेस है उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना। देन एडवांटेजेस बाद में देखेंगे उनके। फर्स्टली टाइप्स ऑफ स्टेजेस ऑफ वेंचर कैपिटल देखते हैं, टाइप्स एंड स्टेजेस।
दो सीडिंग कैपिटल, सीडिंग कैपिटल मीन्स फर्स्ट टाइम जो लगने वाला कैपिटल रहता है, फर्स्ट टाइम आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं जब आपको जो कैपिटल लगता है वो उसको बोलते हैं सीडिंग कैपिटल। तो सीड्स मनी अवेलेबल करके देते हैं वेंचर कैपिटल्स। देन स्टार्टअप कैपिटल, अर्ली स्टेज कैपिटल, एक्सपेंशन कैपिटल एंड लास्ट स्टेज कैपिटल, ये उनके स्टेजेस है, टाइप्स है। तो इनका जो पीरियड होता है सीडिंग कैपिटल पीरियड इज द 7 to 9 ईयर्स का। वो वहाँ पर एक्सट्रीम रिस्क रहती है और एक्टिविटी फॉर सपोर्टिंग कंसेप्ट और आइडिया फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट और प्रोडक्ट डेवलपमेंट। देन नेक्स्ट इज स्टार्टअप कैपिटल, इज पीरियड ऑफ 5 to 9 ईयर्स। यहाँ पर रिस्क ज़्यादा है, इनिशियलाइजिंग ऑपरेशंस और डेवलपिंग प्रोटोटाइप्स, ये उनका एक्टिविटी है। देन अर्ली स्टेज कैपिटल में 3 to 7 ईयर्स हाई रिस्क है, स्टार्ट कमर्शियल प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग। देन एक्सपेंशन कैपिटल, तो 3 to 5 ईयर्स sufficiently high, expand market and growing working capital need। देन लास्ट स्टेज कैपिटल में 1 to 3 ईयर्स जो एग्जिट भी होती है वहाँ पर रिस्क मीडियम है, मार्केट एक्सपेंशन हुआ रहता है, रिक्विजिशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट फॉर प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। सो वेंचर कैपिटलिस्ट, हेलो सर वो सीडिंग कैपिटल फिर से बताइए ना। ओके ओके, वो सीडिंग कैपिटल मुझे समझ नहीं आया। ओके ओके। सीडिंग कैपिटल जो रहता है, सीडिंग कैपिटल venture capitalists are more often interested in providing seed finance, that is the making provisions of very small amounts for finance needed to turn into business। सीड्स मीन्स क्या, जो क्रॉप होते हैं, क्रॉप को ग्रो करने के लिए क्रॉप जो उगाए जाते हैं वो सीड्स रहते हैं। ऐसे कंपनी के लिए सीड मनी की जरूरत रहती है, वो सीड कैपिटल अवेलेबल करके देते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। That is the for research and development activities are required to be undertaken before a product is to be launched। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी जो होती है प्राइमरी लेवल पे, स्टार्टअप लेवल पे, वहाँ पर ये काम होता है। एक्सटर्नल फाइनेंस इज ऑफन रिक्वायर्ड बाय द एंटरप्रेन्योर ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्ट। तो जो प्रोडक्ट की डेवलपमेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्रांच है वहाँ पर, सेक्टर है, वहाँ पर वो काम होता है। देन जो स्टार्टअप कैपिटल है, स्टार्टअप इज द मोस्ट रिस्की एस्पेक्ट ऑफ वेंचर कैपिटल इज द लॉन्च अ न्यू बिजनेस आफ्टर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज आर ओवर। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी के बाद में हाई रिस्क वाला जो पार्ट है स्टार्टअप कैपिटल, यहाँ पर रिस्क ज्यादा रहती है। एट द स्टेज द एंटरप्रेन्योर एंड हिज प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आर एज एट एंटायर्ड, the finance required usually falls short by his own resources। तो उनका ओन रिसोर्सेस तो कम रहता है, उनके पास पैसा नहीं रहता। जो जिनके पास आइडिया है उनके पास उनका खुद का पैसा कम रहता है। जो वेंचर कैपिटलिस्ट है उनका ही पैसा उनके पास रहता है। सो वेंचर कैपिटलिस्ट जो कौन होते हैं, जो पर्सन भी हो सकता है कोई, या ग्रुप हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है, या बैंक फाइनेंशियर होता है, यहाँ पर कोई भी वेंचर कैपिटलिस्ट हो सकता है और उनका एक वेंचर कैपिटल फंड्स रेज करते हैं और ये ढूंढते रहते हैं कि किसके पास अच्छा आइडिया है, वहाँ पर वो इन्वेस्ट करते हैं। देन अर्ली स्टेज कैपिटल वो सेम है, अर्ली स्टेज कैपिटल वहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है फाइनेंशियल एक्सपेंशन करने के लिए, जो बिजनेस है उसको एक्सपांड करने के लिए। एंड लास्ट स्टेज कैपिटल। देन यहाँ पर वेंचर कैपिटलिस्ट इज अ पर्सन और इन्वेस्टमेंट फर्म दैट मेक्स वेंचर इन्वेस्टमेंट एंड दिस वेंचर कैपिटलिस्ट आर expected to bring managerial and technical expertise as well as capital to their investments। ये पूरे सब चीजें देखते हो वहां पर कि कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, वहां पर मैनेजर स्किल क्या है, कौन सा है, देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, कौन लोग रहते हो,
well managerial skill. He has the well managerial skill, well knowledgeable, sophisticated investors come forward to take risk क्लियर रहते हैं, decision making ability, analyzing skill, technology background, scientists, researchers, this type of the venture capitalist. तो सब प्रोसीजर कैसी होती है, प्रोसेस कैसा है, तो वेंचर कैपिटलिस्ट फाइनेंसिंग का जो करते हैं वो प्रोसेस कैसा रहता है कि उनको वहाँ पर इन्वेस्ट करना है वेंचर कैपिटल में, और वो कंपनी में कुछ कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो ये प्रोसेस कौन सी कैसी रहती है। सो फर्स्ट डील ओरिजिनेशन, मतलब डील किसी भी इन्वेस्ट कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करना है तो पहले डील करना जरूरी है, डील होता है। तो वो डील में ऑर्गेनाइज अ डील इज वेरी प्राइमरी स्टेप इन वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग। इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक एन इन्वेस्टमेंट विदाउट अ डील। Therefore, a stream of deal is necessary. However, the source of origination of such deals may be various. तो वो डील के टाइम, तो डील कैसे होती है कि कोई अगर आपका ये पर्सन है, ये पर्सन चाहता है कि इन्वेस्ट करना है कहीं, डी की कंपनी है, डी पर्सन की कंपनी है, और वो चाहता है, उनके पास आइडिया है डी के पास, और ए के पास कुछ फंड्स है, कैपिटल है, तो डी चाहता है ऐसे कि वो कुछ फंड्स उसमें उसके कंपनी में इन्वेस्ट करें, उनके पास आइडिया है, स्किल है, कोई न्यू वेंचर्स है, तो वो क्या करेगा कि कौन सा सोर्स यूज करेगा, कि वो फ्रेंड के पास जाएगा, एक के पास कि मेरे पास आइडिया, तू मेरा कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है। तो अगर उसको कन्विंस करना है तो क्या बोलेगा डी को, ठीक है, ये बोलेगा डी को कि मुझे मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास जो पैसा है वो मेरे घर वाले को आपको कन्विंस करना पड़ेगा, तेरी आइडिया जो भी है, तो आइडिया जो तेरा प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट के बारे में आपको मेरे घर में घर वाले को कन्विंस करना पड़ेगा। तो फिर वो कन्विंस करेगा उसके पेरेंट्स को, और उसके थ्रू वो इन्वेस्ट कर सकता है। और बाद में अगर वो उसके बाद फ्रेंड्स नहीं, फैमिली, और उसके बाद वो ऑनलाइन पे जा सकता है, इंटरनेट के ऊपर नेट्स पे कुछ वो डाल सकता है कि मेरे पास ये आइडिया है। मोबाइल समझो, एक फॉर एग्जांपल मोबाइल का लेते हैं, तो मोबाइल में ऐसा कुछ डिवाइस वो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, लेकिन उनका ऑन पेपर है, वो जो प्रोडक्ट है अगर वो मोबाइल में यूज करता है तो उसका ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग हो जाएगा, कुछ नया कुछ तो भी इसमें इन्वेंशन है, तो ऑन पेपर है। अगर उसमें सच में लाना है, तो रियल में लाना है, तो प्रोडक्ट के लिए रॉ मटेरियल की जरूरत है, एडवर्टाइजमेंट की जरूरत है, सेल्स टीम की जरूरत है, और सब करने के लिए पैसे की जरूरत है। तो पैसा किसके पास से लाएगा, तो फ्रेंड्स के पास, फैमिली के पास से, या वेंचर कैपिटल्स जो है उनके पास से लेके आएगा। तो पहले इसके लिए डील जरूरी है। बाद में डील होने के बाद में वो जो वेंचर कैपिटलिस्ट है वो क्या करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग इज द प्रोसेस बाय व्हिच द वेंचर कैपिटलिस्ट टेस्ट ऑल द प्रोजेक्ट्स इन व्हिच ही कुड इन्वेस्ट। इनको जो इन्वेस्ट करना है, इनके लिए जो उनका जो प्रोजेक्ट उन्होंने बताया है डी पर्सन ने, तो उसका स्क्रीनिंग करना है कि ये रियल में प्रोजेक्ट है क्या। आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आंख बंद करके तो नहीं कर सकते, और डील करने के बाद डील जो होती है, लेकिन उसका स्क्रीनिंग भी होता है। द प्रोजेक्ट्स आर कैटेगराइज अंडर सर्टन क्राइटेरिया सच एज मार्केट स्कोप, क्या है उसको, टेक्नोलॉजी कैसी उसकी है, प्रोडक्ट क्या है, साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है उनका, जोग्राफिकल लोकेशन क्या है, स्टेज ऑफ फाइनेंसिंग एटसेट्रा, वो सब चीजें वो देखते हैं, और बाद में वो सोचते हैं कि यहाँ पर इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। देन इवैल्यूएशन, अभी ये सब दो चीजें करने के बाद में इवैल्यूएट करना पड़ता है कि द प्रपोजल इवैल्यूएटेड आफ्टर द स्क्रीनिंग एंड अ डिटेल स्टडी इज डन। तो पूरा डिटेल स्टडी करते हैं कि एंटरप्रेन्योरियल स्किल क्या है उसमें, और जो उनकी टीम बनेगी वो टीम में एंटरप्रेन्योरियल स्किल है क्या, टेक्निकल कॉम्पिटिशंस है क्या, मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग एबिलिटीज उनमें है क्या, एंड एक्सपीरियंस, उनको कुछ एक्सपीरियंस है, पास्ट एक्सपीरियंस कुछ, and put into consideration during evaluation. Then deal negotiation,
कोई भी चीज परचेस करने को जाए, मार्केट में सारी छोटी सी चीज भी परचेस करने को जाए तो आप निगोशिएट करते हैं वहां पर कि वो चीज कैसी है, उनका यूज कितना है, ड्यूरेबिलिटी कितनी है, कैसा है, और निगोशिएशन करने के बाद भी फिर प्राइस निगोशिएट करते हैं आप। तो वैसे आफ्टर द वेंचर कैपिटलिस्ट फाइंड द प्रोजेक्ट beneficial, they gets into deal negotiation. Deal negotiation is a process by which the terms and conditions, उनका टर्म्स कंडीशन कैसा रहेगा, ऑफ द डील आर सो फॉर्मुलेटेड सो एज टू मेक इट म्यूचुअली बेनिफिशियल, the both the parties put forward their demands and way the between is sought to settle the demands. Some of the factors which are negotiated are amount of investment, percentage of profit held by the both parties, right of the venture capitalist and entrepreneur etc. और वेंचर कैपिटल्स का उनका जो शेयर होगा वो कितना परसेंट होगा, कैसे होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे होगा, उनका ड्यूरेशन कितना है, ये सब यहाँ पर देखा जाता है प्राइमरी स्टेज पे। देन पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, अभी ये तीनों चीजें देखने के बाद में उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो इन्वेस्टमेंट करने के बाद में उनका काम खत्म होगा ऐसा नहीं। तो पोस्ट इन्वेस्टमेंट मतलब कि वो इन्वेस्टमेंट करने के बाद में उनकी एक्टिविटी क्या रहेंगी। तो once the deal is finalized, the venture capitalists become a part of the venture and takes up certain rights and duties. उनकी rights and duties अभी start हो गई। The capitalist, however, does not take a part into day-to-day procedure of the firm. It only becomes involved during the situation of the financiers. और डे टू डे वर्क में पार्टिसिपेट नहीं हो सकता। वो पार्टिसिपेट कौन हो सकते हैं, मैनेजर जो लेवल के लोग रहते हैं, ओनर्स रहते हैं, एंटरप्रेन्योर्स रहते हैं, लेकिन ये डे टू डे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं होते, लेकिन फिर भी वो देखते रहते हैं कि वर्क कैसे चल रहा है, यहाँ की पोजीशन कैसी, मार्केट सिचुएशन कैसा है, प्रोडक्ट का अच्छी तरह से चल रहा है या नहीं चल रहा। अगर उनको कुछ सजेशन करना है, गाइड करना है, तो गाइड कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं वो प्रोडक्ट के लिए और वो एक्टिविटी के लिए। इट ओनली बिकम्स इन्वॉल्व ड्यूरिंग द सिचुएशन ऑफ द फाइनेंशियल रिस्क। द वेंचर कैपिटलिस्ट participate in the enterprise by a representation in the board of directors and ensure that the enterprise is acting as per the plan. As per the plan वो acting हो रहा है या नहीं हो रहा, या फ्रॉड है, स्कैम है, क्या है, वो डे टू डे लाइफ भी अगर नहीं देखता है तो वो देखता रहता है कि कैसा कैसा वर्क चल रहा है। देन लास्ट में एग्जिट प्लान। वो एग्जिट प्लान कैसे रहता है, एग्जिट हो सकता है कब, the last stage of venture capitalist invest is to take the exit plan based on the nature of the investment. उनका इन्वेस्टमेंट के नेचर कैसा है, टाइप ऑफ फाइनेंशियल स्टेक कैसा है, उसके ऊपर एग्जिट प्लान रहता है उनका, और रिटन डॉक्यूमेंट क्या क्या है, कैसे है, उसके ऊपर डिपेंड है एग्जिट प्लान। द एग्जिट प्लान इज मेड टू मेक मिनिमल लॉस और मैक्सिमम प्रॉफिट्स। अगर एग्जिट हो रहे हैं तो एग्जिट होते टाइम अपना मिनिमम लॉस हो और मैक्सिमम प्रॉफिट्स ये देखता है, तभी वो एग्जिट होता है। देखिए अब शेयर मार्केट में आपने कुछ शेयर परचेस किए हैं, अगर शेयर्स के डाउन हो गए, अभी मार्केट डाउन हुआ है, तो आपको शेयर अगर बेचने हैं तो आप क्या सोचेंगे कि अभी तो डाउन है, थोड़ा सिचुएशन अच्छा होने दो, बाद में आप उनको बेचेंगे, थोड़ा प्रॉफिट आने दो, लॉस भी नहीं कम होना, प्रॉफिट अगर नहीं मिल रहा तो लॉस तो भी नहीं होना, यह आप सोचते हैं। तो वही सोच उनकी रहती है वेंचर कैपिटलिस्ट की। सो यहाँ पर देखते हैं टाइप्स में, advantage before the discuss advantages, we'll see in the टाइप्स ऑफ द वेंचर कैपिटलिस्ट। उनका जो रिस्क रहता है वेंचर कैपिटल का, वो हाई रिस्क रहता है। द मेन फीचर ऑफ द वेंचर कैपिटल वी सी इक्विटी पार्टिसिपेशन, हाई डिग्री रिस्क, अचीव सोशल इन्वेस्टमेंट इज लिक्विड। देन टाइप्स में वेंचर कैपिटल के 3 टाइप्स हैं,
Venture capital funds set up by angel investor, that is the high net worth individual investor. Then venture capital subsidiaries of corporations, these are the established by major corporations. And then private capital firms and funds. These are the three types of the venture capitalists. Then वो जो स्टेजेस है उनके वेंचर कैपिटल, स्टेजेस ऑफ वेंचर कैपिटल्स में अर्ली स्टेज फाइनेंस जो है, अर्ली स्टेज फाइनेंसिंग में सीड्स कैपिटल एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, देन स्टार्टअप्स, सेकंड राउंड फाइनेंस, लेटर स्टेज में डेवलपमेंट कैपिटल, एक्सपेंशन फाइनेंस, रिप्लेसमेंट कैपिटल, टर्न अराउंड्स एंड बाय आउट्स. तो अर्ली स्टेज में we will see about the seeds money, then startup, second round it refers to the stage when product has already been launched in the market but has not earned enough profits. सेकंड राउंड में जो रहता है कि एक्सपेंशन के लिए अगर ये इनफ प्रॉफिट नहीं हो रहा वहां पर, तो वहां पर क्या होता है कि एडिशनल फंड्स आर नीडेड एट दिस स्टेज टू मीट द ग्रोइंग नीड्स ऑफ बिजनेस. एडिशनल मनी की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे टाइम में भी वेंचर कैपिटल्स की जरूरत होती है. वेंचर कैपिटल जो इंस्टीट्यूशंस है प्रोवाइड लार्जर फंड्स एट द स्टेज. जो इंस्टीट्यूशंस है वेंचर कैपिटल इंस्टीट्यूशंस लार्जर कैपिटल फंड्स प्रोवाइड करने के लिए जरूरी होता है, जो इंडिविजुअल से ज़्यादा मनी प्रोवाइड करता है, फंड्स अवेलेबल कर के देते हैं अपने को. द टाइम स्केल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज यूजुअली 3 और 7 ईयर्स. वो उनका जो पीरियड है अपना कितना है, 3 और 7 ईयर्स का है. और लेटर स्टेज का जो है, लेटर स्टेज फाइनेंसिंग होता है दोज एस्टेब्लिश बिजनेस विच रिक्वायर एडिशनल फाइनेंशियल सपोर्ट but cannot raise capital through public issue, approach venture capital funds for financing expansion beyond that. Then development, जो capital development के लिए जो होता है, it refers to the financing of an enterprise which has overcome the high risk stage. ठीक है, आवाज आ रही है मेरी? तो बीच में ब्रेक हो जाता है. हेलो, यस सर, आ रही है. हाँ ठीक है. यस सर, क्लियर है. ओके, सो यहाँ पर हाईली रिस्क स्टेज रहती है. यहाँ पर डेवलपमेंट स्टेज के ऊपर हैव रिकॉर्डेड प्रॉफिट्स बट कैन नॉट गो पब्लिक, दस नीड्स फाइनेंशियल सपोर्ट. पब्लिक में जाते नहीं पाए, फर्स्ट स्टेप के ऊपर अगर पहले पब्लिक में जाए इन स्टेज पे, तो आपको कोई फाइनेंस नहीं करेगा. तो आप कहाँ पर जा सकते हैं? वेंचर कैपिटल के पास, एक्सपेंशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए, बायआउट्स के लिए अपन वहाँ पर जा सकते हैं. सो इसके बाद फाइनल जो अफेक्टेड फैक्टर्स है इन्वेस्टमेंट के, जो स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम वहाँ पर जरूरी है. देन viable idea before taking investment decision, venture capital firms consider the viability of project or the idea. Then business plan क्या है आपका, देन प्रोजेक्ट कॉस्ट, रिटर्न्स, फ्यूचर मार्केट प्रोस्पेक्टिव्स क्या क्या है, एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी आपके पास क्या है, एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी यूज एंड एनी टेक्निकल कोलैबोरेशन एग्रीमेंट्स एंटर इनटू बाय द प्रमोटर्स आल्सो लार्ज एक्सटेंट अफेक्ट द इन्वेस्टमेंट डिसीजन. एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हैं, आपका मार्केटिंग प्लान, देन जो मिसलिनियस पॉइंट्स रहते हैं वो यहाँ पर जरूरी होते हैं. देन एडवांटेजेस देखते हैं यहाँ पर, एडवांटेजेस ऑफ वेंचर कैपिटल टू इन्वेस्टर्स. जो एडवांटेजेस है इन्वेस्टर के लिए वो क्या रहते हैं इन्वेस्टर के, उनके पास तो पैसा पड़ा हुआ रहता है बहुत सारा, वो ढूंढते रहते हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, अच्छी जगह कौन सी इन्वेस्ट करने के लिए, तो उनको अच्छा बेनिफिट वहाँ पर रिटर्न मिल सकते हैं. देन टू वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग्स टू सोसाइटी इकोनॉमी, ऑटोमेटिकली कुछ एखादा प्रोजेक्ट ग्रो हो रहा है, स्टार्टअप हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो इकोनॉमी अपने वो नेशन की बढ़ती है, सोसाइटी को बेनिफिट मिलता है. देन प्रोवाइड लार्ज सम ऑफ इक्विटी फाइनेंस.
देन वो अगर ग्रो होती रहती है तो शेयर मार्केट में उनको और शेयर फाइनेंस भी होता है. कैपिटलिस्ट आर रिवार्डेड बाय बिजनेस सक्सेस एंड द कैपिटल गेन, एबल टू bring wealth and expertise to your company. The venture capitalist also has wide network of contacts. उनका नेटवर्क बहुत बड़ा रहता है. अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो बहुत पब्लिसिटी होती है, या फिर वो हाई इंटरनेट थ्रू, सोशल मीडिया थ्रू भी पब्लिसिटी होती है, तो ऑटोमेटिकली उनका नेटवर्क बढ़ता है और उनको बेनिफिट मिलता है, एंड देन उनको प्रोवाइड एडिशनल फंड्स अवेलेबल होते हैं. सो इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी है. तो डिसएडवांटेजेस इज लेंदी एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, नीड डिटेल बिजनेस प्लान, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन एटसेट्रा. ये पूरा कंप्लीट आपको साउंड प्रूफ होना, तो उसको लेंदी प्रोसीजर है. आपको अगर वेंचर कैपिटल होना है, लोगों के पास जाना है, कैपिटलिस्ट के पास जाना है, तो वहाँ पर आपको साउंड प्रूफ होना चाहिए. आपका प्लान, आपका प्रोजेक्शन, जो फाइनेंशियल प्रोजेक्शन हो, वो सब अच्छी तरह से सॉरी लॉन्च करना जरूरी है. So in the deal negotiation stage, you will have to pay for legal and accounting fees. आपको फीस तो पे करना ही, लीगल जो फीस है, अकाउंटिंग फीस है, और निगोशिएशन स्टेज पे अपना स्किल वहाँ पर दिखाना जरूरी पड़ता है. वो स्किल अगर आपके पास नहीं है तो डिसएडवांटेज यहाँ पर हो सकता है कि स्किलफुल आप होना, वो आपका जो प्रोजेक्ट है, आपकी जो स्टोरी है, वहाँ पर आपको प्रेजेंट करनी है. तो सक्सेस होती है नहीं होती, वो उसके ऊपर डिपेंड रहता है कि कितना परसेंटेज अभी सक्सेस रेट अभी है उनका वेंचर कैपिटलिस्ट का. Investors become a part owners of your business. Founder loss of autonomy of control. देन बाद में यहाँ पर प्रॉब्लम फेसिंग बाय इन वेंचर कैपिटल्स क्या क्या फेस करते हैं प्रॉब्लम्स. रिक्वायरमेंट ऑफ एन एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम. स्टार्टअप में एक्सपीरियंस टीम, लैक ऑफ एक्सपीरियंस पर्सन रहते हैं, मैनेजरल टीम्स रहती है, वहाँ पर ज़्यादा एक्सपर्टाइज नहीं रहते, तो ये रिस्क के बेस पे ही इन्वेस्ट करना पड़ता है. देन रिक्वायरमेंट ऑफ एन अबव एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट, longer payback period, uncertainty regarding the success of the product in the market. सक्सेस की अनसर्टेनिटी रहती है क्योंकि वो मार्केट में अवेलेबल नहीं रहता, वो स्टार्टअप ही है. तो क्वेश्चंस रिगार्डिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर डिटेल्स ऑफ प्रोडक्शन, स्किल एंड ट्रेनिंग रिक्वायर्ड, टाइम पीरियड, इंटरफेरेंस इन बिजनेस, ये जो सब चीजें हैं, ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है वेंचर कैपिटलिस्ट को. तभी तो उनको अच्छे रिटर्न वहाँ पर मिल सकती है, क्योंकि कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा रिटर्न उनको मिल सकते हैं. तो रिस्क तो लेना ही पड़ता. तो वैसे ये वेंचर कैपिटल्स के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस यहाँ पर है. तो नेक्स्ट जो टॉपिक है तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. फिलहाल इतना काफ़ी है आज के लिए. सो थैंक यू, लिसन केयरफुली. You want to any question?